MBA is dead. Doing an MBA in 2026, you become an idiot. You are wrong. आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना पड़ेगा अपना, तब आपके लिए कुछ भी कोई भी फील्ड तो होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने के लिए तो बहुत सारे यही स्किल बेस्ड कोर्स है 3-3 महीने के, या IIMS के अंदर भी 15 डेज के हैं, वो करके नौकरी कर सकता है। मेरे रिसेंटली सर मेरे को एक आदमी मिले, उनको इंदौर मिला था एंड वो नहीं गए थे इंदौर में। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं अपने अप्रोच के साथ तो आपको है कि हाँ मेरे को डेली करना ही करना है। मोटिवेशन का क्या है सर, मोटिवेशन आज है तो आपने कर लिया, कल थोड़ी कम है नहीं करेंगे। वो खान सर कहते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला हर एक स्टूडेंट भले आईएएस या आईपीएस ना बने, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बनता है। ठीक वैसे ही मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक एमबीए का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट भले उसको आईएम्स टॉप आईएम्स मिले या ना मिले, सीएक्सओ या सीएफओ वाली पोजीशन ना मिले, लेकिन वो अपनी करियर में इतनी नेटवर्क बिल्डिंग कर लेता है और इतनी उसको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर पा लेता है। वेलकम बैक टू अनदर आई ओपनिंग एंड इंस्पायरिंग एपिसोड वेयर वी ब्रिंग you real story of hardiness, determination and success. Today we have with us Mr. Kanis Ranjan, who has been preparing for MBA entrance exam for the last 3 years. His journey has been full of hard work, consistency and patience. Kanis has scored 93 percentile in 2024. Again he has scored 92 and 93 percentile in following attempts in CAT exam. Because of his dedication, he received offer letter from various top B school including IIM Shillong, IIM Rohtak, IIM Bodh Gaya, IIM Amritsar, IIM Jammu and many more. Today we will talk to Kanis about his 3-year MBA journey. We will understand what kept him motivated, what strategy worked for him, and how handle pressure and failures, and what advice he has for MBA aspirants who are preparing for CAT and JAT exam for upcoming years. Hi Kanis, welcome to our podcast. Thank you so much for having me, sir. It's an honor to be here. Thank you. So after 3 years of CAT and MBA entrance exam preparation, what kept you motivated despite setback and uncertainty? So first of all, obviously the idea behind the preparation and the beginning of the journey was securing an admission into a top B school. So soon after my first attempt, when I realized that okay, I didn't really do well in the examination, it was it was an early stage of recognition for me, wherein I understood that there are certain areas of improvement which I can improve, and thereupon I decided to give it another attempt, and simultaneously I also decided to work on my profile building, because when I appeared in the CAT exam for the first time, I wasn't really aware of the importance of such profile building and what importance all these things have in your holistic development and the kind of selection criteria the colleges have. So again, as I mentioned, like after my first attempt, I gave multiple interviews, but I wasn't selected for their programs. I gave interviews for some IITs in the first attempt, but thereafter I started my corporate journey, such that I was aware that marks are being awarded for work experience, and being a general, I had to have a strong foundation and strong profile for myself to convert those top B schools. So I started my journey with one of the MNCs, that is NatWest Bank, and Achha. I started there, and I was working as a operations analyst there, and simultaneously I was also preparing for the CAT exam. So the idea was again to appear for those exams, crack the interviews, and get an admit into a top B school. So that is what had kept me going throughout. And again, I had to, since I mentioned, I was very keen on getting into a top B school. So I again decided to give it again and again, until I was satisfied with the kind of result or the kind of institute I was getting an admit from. So that is what kept me going. अक्सर फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट सेकेंड ईयर तक जाते जाते, क्योंकि ग्रेजुएशन पहले वो 10th 12th ग्रेजुएशन फिर एमबीए करने के लिए जाता है, उसके पहले भी एंट्रेंस एग्जाम देता है, तो वो 2 साल में फ्रस्ट्रेट होकर रुक जाता है। कहीं ना कहीं टॉप बी स्कूल अगर नहीं मिला तो टियर 2 टियर 3 या टियर 4 में भी अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है। लेकिन आप एंड तक लगे रहे। लास्ट में आपकी जर्नी, जैसा आपने अपनी प्रोफाइल में बताया कि आप बोध गया में जाके अपनी प्रोफाइल को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है या आपको लगता है कि ये एंडिंग सही है? सर जब इनिशियली स्टार्ट किया था मैंने, तो पूरा प्लान वही था कि एक टॉप बी स्कूल लेना है। और सर इंडिया में अगर आपको एमबीए करना है तो सबको पता है कि जो आईएम का टैग वैल्यू होता है वो हमेशा आपके साथ लाइफ लॉन्ग कैरी होता है। बिल्कुल। तो मैंने भी सर उसी प्लानिंग से स्टार्ट किया था। प्रीवियस ओकेजन्स पे जब मैंने कैट के लिए अपीयर किया था, मेरी हायर परसेंटाइल्स थी, बट सिंस मैंने सेक्शनल कट ऑफ्स मिस किए थे तो आईएम्स का मेरे को कभी इंटरव्यू कॉल आया ही नहीं था। ओके। ऑल्दो मैंने अलग अलग कॉलेजेस सच एज आईएमटी को कन्वर्ट किया था एंड और भी थे, बट मैंने स्टिल उसमें सेटल नहीं किया, बिकॉज
वो एक मेरे को रिग्रेट नहीं रखना था कि चलो एक और बार नहीं दिया या इसमें सेटल कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए लास्ट एक और बार सोचा कि एक और बार अटेम्प्ट देते हैं। एंड विद बेटर प्रिपरेशन दिस ईयर मैं D-Day पे कुछ एग्जाम की ड्यूरेशन में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आए थे जिससे बहुत ज़्यादा टाइम डाइवर्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मेंटल जो आपका फोकस होता है वो भी डिस्टर्ब हुआ था। So I ended up securing a 92 percentile, which was lesser than the previous years. But fortunately, I was able to cover all the sectional cutoffs this year, which ultimately helped me get calls from the top from the IIMs basically. Okay. So that is what had me. And अगर रही बात सर IIM बोधगया की, तो अगेन सर अगर हम बोलते तो वो IIM बोधगया, तो IIM सर उसमें भी आ रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल टैग रहेगा सर उसमें। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पर्सनल स्किल सेट पे भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको सर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड आप उनको अच्छे से ग्रैस्प करना आप जानते हैं, तो सर आप किसी भी कॉलेज से पढ़ के, हमने सर ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस देखे हैं जब टॉप 20 स्कूल से, यहाँ तक कि ओल्डर IIM से भी बच्चे अनप्लेस्ड या बहुत बेसिक रोल्स में निकलते हैं। बिल्कुल। और ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे हैं जहाँ पे बच्चे बहुत बेसिक कॉलेजेस से भी बहुत हाई पैकेजेस सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि अब सर मार्केट ही ऐसा हो गया कि एम्प्लॉयर्स को स्किल सेट चाहिए, उनको अडेप्टेबिलिटी चाहिए, उनको सर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए लोगों में, रादर देन जस्ट अ मियर डिग्री। तो वो एक शिफ्ट हो गया है। तो सर वो मेरे को आइडिया कि सर अब जो 3rd ईयर के बाद मैं अपना फाइनल एडमिशन सिक्योर कर रहा हूँ बोधगया में, तो वो एक कल्मिनेशन ऑफ 3 years ऑफ हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड काफ़ी सारी चीज़ों का कल्मिनेशन होके जा रहा है। तो आई नो कि मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं उससे बेस्ट अपने आप को, अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वहाँ पे टैकल कर पाऊंगा एंड बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। ये मेरे को सर अपने पे है कॉन्फिडेंस, तो दैट इज़ व्हाई आई एम राइट नाउ गोइंग फॉर IIM बोधगया। ठीक है, आपके पास सिलेक्शंस तो बहुत सारे IIMs के हैं, 5-6 IIMs के हैं, लेकिन आपने उसमें बोधगया को ही क्यों सिलेक्ट किया इंस्टेड ऑफ शिलोंग, अमृतसर या जम्मू? जम्मू भी, शिलोंग और जम्मू को शायद अच्छा कहा जाता है। BJS कैप कॉल में कैप उसकी कराती है एडमिशन्स की प्रोसेस, उस पूरे एडमिशन की कैप की कॉल्स बहुत लोग वेट करते हैं मार्च अप्रैल एंड तक। तो इन सब के बीच में आपने बोधगया को ही क्यों सिलेक्ट किया इंस्टेड ऑफ शिलोंग और जम्मू? सर रियलिस्टिकली बताऊं तो शिलोंग में मेरा डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं था, मैं वेट लिस्ट में हूँ वहाँ पे। ओके। तो अभी वेट लिस्ट का वेट है, मूवमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके। एल्स देखते हैं। बाकी सर और भी कन्वर्ट्स थे, जैसे जम्मू था, सिरमौर था, अमृतसर था एंड संबलपुर से भी वेट लिस्ट में हूँ फिलहाल, जो कि कन्वर्टेबल वेट लिस्ट है। ठीक है। बट स्टिल फॉर नाउ मैंने बोधगया इसलिए सेटल किया क्योंकि सर मल्टीपल रीजन हैं उसके। पहला, बोधगया सर वो एक वन ऑफ द IIMs है जो कि पहले आपको ऑडिटेड रिपोर्ट्स दे रहा है। तो वो सर एक ना एक फेथ क्रिएट कर देता है और एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है आपको कॉलेज से। सेकंड फैक्टर ये भी है कि सर मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो कैंपस बिहार में होना एक वो भी होता है कि आपके लिए लोकेलिटी में जेलअप होना, लोगों से इंटरेक्शन करना एक थोड़ा ईजियर हो जाता है। बिल्कुल। और सर जैसे सिरमौर का ये भी था कि सिरमौर के लिए अभी मैंने सुना था कि अभी परमानेंट कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि मे बी नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वो फैक्टर था। अमृतसर ऑल्दो काफी अच्छा कर रहा है, जम्मू भी काफी अच्छा कर रहा है, बट सर मैंने पर्सनल प्रेफरेंसेस और भी कुछ रीजन से फिर मैंने बोधगया पे सेटल किया फाइनली। ओके, पर्सनल रीजन की वजह से। यस सर। ठीक है, अब ये जो 3 साल की जो आपकी जर्नी है, इस जर्नी में आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या ऐसी इंप्रूवमेंट देखी जिसकी वजह से अदर स्टूडेंट्स को कॉल्स नहीं आती है या आपको कॉल्स नहीं आई? तो आपने ऐसा क्या उसमें इम्प्रूव किया या इम्प्रूव करना चाहिए और अदर स्टूडेंट्स को, ताकि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके? राइट सर, अब कैट एग्जाम जब आप दे देते हैं ना, तो अब ऐसा होता है कि आप पहले की चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब वो आपका हुआ 10th 12th के मार्क्स या ग्रेजुएशन के मार्क्स, वो ऑलरेडी आपके जो आ चुके हैं वो आप चेंज कर नहीं सकते। ठीक है। तो आपके हाथ में जो भी है, जो कि आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, आप सिर्फ उन्हीं के साथ प्ले अलॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्ट्रैटेजी हुई, या आप कैसे कैट में प्रिपरेशन करते हैं एंड आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं आगे बेसिकली। तो उसके लिए सर आप हायर परसेंटाइल स्कोर करते हैं तो अगेन आपके पास एज है। बट अगर आप मिड परसेंटाइल्स में, मिड से जैसे आप 90 से 95 के बीच में है, तो सर आपको अगर अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है तो आपको वहाँ पे अच्छी प्रोफाइल चाहिए ही चाहिए इस टाइम पे। अगर मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से भी बताऊँ तो सर 92 परसेंटाइल पे भी IIM शिलोंग ने मेरे को इंटरव्यू कॉल दिया, बीइंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी। बिल्कुल। एंड लोग सुनते हैं सर, दे लिटरली गेट सरप्राइज्ड। आर यू जेम? नो, जीनेम। ओके। सो 92 पे भी लोग सुनते हैं कि आपको IIM शिलोंग से कॉल आया, सो उनको थोड़ा सा शॉक लगता है कि कैसे, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको 97 परसेंटाइल पे भी शिलोंग ने कॉल नहीं दिया। तो वहाँ पे आता है सर आपको प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स शिलोंग अवार्ड करता है आपको, वो आउट ऑफ 14 कर रहा था इस बारी, एंड मेरा जिस रेंज में था वो एकदम उनके लिए आइडियल रेंज था। मुझे 14 आउट ऑफ 14 का स्कोर मिला इन देयर कैलकुलेशन। तो सर किसी भी कॉम्पोजिट स्कोर में अगर आप 14 मार्क्स आउट ऑफ 14 सिक्योर कर लेते हैं,
तो आप इवन विद 90 परसेंटाइल आप 99 या 98 वाले को कंपटीशन दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो फ्रेशर है तो क्योंकि मार्क्स परसेंटाइल में बहुत ज्यादा आपका कॉम्पोजिट्स को डिफरेंस नहीं बनेगा, बट वर्क एक्स से सर बहुत ज्यादा गैप कवर हो जाता है। तो वर्क एक्स बहुत मैटर करती है? राइट सर, मेरे अकॉर्डिंगली करती है अगर आप लोअर परसेंटाइल पे हैं। ठीक है। क्योंकि सर इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, काफी लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट में बीइंग अ फ्रेशर मिल जाता है सिलेक्शन, हाँ। काफी लोग को थर्ड अटेम्प्ट में भी, जैसा अगर मैं अपनी बात बताऊं, इवन विद अ डिसेंट प्रोफाइल आपको टॉप कॉलेजेस से में भी ना मिले, बट वो सर आपको एटलीस्ट एक चांस मिलता है इंटरव्यू में अपीयर होके। डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं मिल रहा, आप इंटरव्यू में देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप उसी ऑप्टिमिज्म के साथ जाएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ उसको, एक एटलीस्ट चांस है मेरे पास, तो उसके साथ आप जाएंगे फिर आगे। तो प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं भी है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे काम किया हुआ है, तो चांसेस हैं कि यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द IIMs or top B school. राइट सर, राइट। Okay. Kanishk, what was the toughest phase of your MBA journey? सर टफेस्ट मेरे लिए तो वही था कि क्योंकि मैं मल्टीपल ओकेजन्स पे सेटबैक्स ले चुका था इस एग्जाम के थ्रू। हाँ। तो पहले तो सर आप मेंटली, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है कैट की 1 साल की, पहले आप प्रिपरेशन करते हैं, देन आप नवंबर में कैट एग्जाम के लिए अपियर होंगे, देन आपके पास जो भी अवेलेबल कॉल्स हैं आप स्टिल मेंटली ट्राई करते हैं कि मैं उसको किसी भी हाल में कन्वर्ट कर लूँ, बाद में एडमिशन लेना है नहीं लेना दैट इज अनदर चॉइस। बिल्कुल। तो वो इंटरव्यू तक का भी जर्नी आपका नेक्स्ट ईयर मार्च तक या अप्रैल तक रिजल्ट्स का टाइम ले लेता है। बिल्कुल, ये पूरा 1 साल की जर्नी है, अगस्त टू अप्रैल। राइट, पूरा आपका टाइम निकल गया। एंड फिर अगर आप ऐसा मेंटली आप वापस सोचते हो कि नहीं मेरे को एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, या आपको लेट्स से कि कोई कॉलेज शॉर्टलिस्ट नहीं देता है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि आपको अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा, तो सर अगेन आपकी जो अप्रैल तक का टाइम है वो जा चुका है। देन अगेन आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना इस चीज़ के लिए कि आपको एक और साल वापस अटेम्प्ट करना है, आपको फिर पूरे जर्नी से वापस जाना पड़ेगा, अगेन वो आपको मॉक्स देने पड़ेंगे, अगेन वो लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, देन अगेन आपको इंटरव्यूज के लिए जो कि अनसर्टेन है कि आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए अपेयर होना वो बहुत टफ पार्ट है। एंड जैसे कि मैं जॉब भी कर रहा था, फुल टाइम जॉब थी मेरी, तो सर उसके साथ मैनेज करना बोथ स्टडीज एंड जॉब बहुत हेक्टिक था मेरे लिए, क्योंकि मेरी शिफ्ट टाइमिंग्स भी ऐसी थी जो कि यूके बेस पे चलती थी। अच्छा। तो मेरे लिए टाइमिंग जो पढ़ाई के लिए बचती थी वो या तो अर्ली मॉर्निंग होती थी या तो लेट नाइट। तो मेरे को अर्ली मॉर्निंग 4:30 या 5 o'clock उठ के देन 2 या 3 आवर्स का स्टडी सेशन लेके देन आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, तो वो बहुत लंबा डे हो जाता था मेरे लिए, बट स्टिल आई वाज मैनेजिंग इन इट। ओके, तो एग्जाम के बाद, एंट्रेंस एग्जाम कैट या जेट एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू कितना मैटर करती है कन्वर्ट करने में? सर जब आप एग्जाम दे के आपको इंटरव्यू का शॉर्टलिस्ट आता है ना, तो आपको लगता है कि एग्जाम वाज द इजियर पार्ट। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपके हाथ में है, आपकी तैयारी, आपकी स्ट्रैटेजीज एंड आप कैसा उस दिन परफॉर्म करते हैं। बट इंटरव्यूज ऐसा पार्ट होता है कि सर पहले तो अगेन आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको कोई कॉलेज देगा कि नहीं। बिल्कुल। कि ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनको 99.95 पे भी टॉप ABC के कॉल्स नहीं आते। तो वो डिसहार्टनिंग भी होता है पहले तो। इवन 97 पे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे स्टूडेंट को मैंने देखा है 97 98 पे किसी भी टॉप या किसी IIMs की कॉल नहीं आई। वही सर, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ना ये सब चीज़ें, तो उसके लिए सर बहुत मैटर करती हैं। मतलब इंटरव्यूज में क्या है कि आपके हाथ में कुछ है नहीं वहाँ पे, जो आपका कोहॉर्ट है जो आया इंटरव्यू के लिए वो भी आपके इक्वल लेवल पे होगा, सिंस दे हैव आल्सो बीन कॉल्ड, तो वो सर आपको भी पता है दैट उनमें भी कुछ होगा जो वो यहाँ पे है। बिल्कुल है। एंड इंटरव्यूअर का क्या माइंडसेट है, इंटरव्यू के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपको नहीं पता, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कैसे भी, या वो आपका कहाँ से कहाँ फ्लो घुमाएंगे वो आपको कुछ आइडिया नहीं उसका, बस कुछ भी पूछ सकते हैं। राइट, कुछ भी पूछते हैं वो सर। तो ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यू से बस ये बेनिफिट बहुत होता है आपके लिए कि जब आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको एक कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो स्किल सेट डेवलप होता है एंड आपका एक सेल्फ असेसमेंट हो जाता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज आपको पता है कि हाँ जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछेंगे। बट अगेन इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो भी बहुत क्लेवर होते हैं, उनको जो पता है कि सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन है जो सब प्रिपेयर करते हैं, वो उसके अलावा सब पूछते हैं वहाँ पे। Why MBA, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, वो तो सर पूछते ही नहीं, मैं से नहीं पूछा बिल्कुल किसी इंटरव्यू में नहीं पूछते, ये बस हम प्रिपेयर करते हैं अपने। हाँ, उनको क्योंकि पता है कि सब लोग ये प्रिपेयर करके आ ही रहे हैं, तो उनको पता है कि हम पूछेंगे, बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर करके आया, वो एक पूरे फ्लो में बोल देगा। सो दे आस्क मोस्ट रैंडम थिंग्स जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो GDPI का सर सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जो 99 पे रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो 96 पे कन्वर्ट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनको वो कम्युनिकेशन स्किल सेट आता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कैट प्रिपरेशन के साथ साथ अपना जो भी आप GDPI का प्रिपरेशन करते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग करते हैं, आपको साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देना चाहिए रादर देन वेटिंग फॉर द एंड मोमेंट।
वो ओके, आपको बहुत हेल्प करता है फिर आगे जाके। ठीक है। और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम या फिर एमबीए एंट्रेंस एडमिशन प्रोसेस जो है ये अगस्त टू अप्रैल का, ये कितना आइडेंटिफाई करता है फ्यूचर लीडर को फाइंड करने में? आपको लगता है कि ये प्रोसेस आइडेंटिफाई कर सकता है या करता होगा? सर मेरे ख्याल से लीडरशिप बहुत मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। आप सर्टेन एस्पेक्ट्स पे उसको नहीं मेजर कर सकते हैं, बट हाँ ये जर्नी के थ्रू सर्टेन ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आप एज ए लीडर दिखाते हैं, जो कि आपकी टेस्ट होती है। जैसे आप पूरे थ्रू आउट में एनालिटिकल स्किल्स आप डेवलप करते हैं अपने, देन आप डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, टाइम बाउंडेशन, अंडर एम्बिग्विटी, आप ये सब सीखते हैं। देन आपके पास सर हाउ टू मैनेज विद इन द बेस्ट, हाउ टू मैनेज योर रिसोर्सेज विद इन द अवेलेबल टाइम, ये सर आपको सब चीज़ें देखनी है जो कि एक लीडर भी फ्यूचर में करता है। तो करंट जो प्रोसेस है वो सर्टेन एक्सटेंट तक यस लीडरशिप को आइडेंटिफाई ज़रूर करता है फ्यूचर के लीडर्स को, बट अगेन वहाँ पे भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है, तो वो मल्टी डायमेंशनल है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मे बी आप उस एग्जाम से या उससे ना कवर कर पाए, बट हाँ ऐसी ज़रूर ऐसी स्किल सेट्स हैं या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आप एक एक्सटेंट तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन में डेवलप हुई है या नहीं हुई है थ्रू आउट हिज जर्नी। ओके, इतनी सारी बातें करने के बाद मेरे दिमाग में ये आता है कि अभी हाल ही में लिंक्डइन प्रोफेशनल एक एप्लीकेशन है, उस पे देखा रिसेंटली सोशल मीडिया नहीं, रिसेंटली इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन हैज़ बिन फिल्ड विद द स्टेटमेंट लाइक एमबीए इज डेड और डूइंग एन एमबीए इन 2026 यू बिकम एन इडियट। ये बहुत सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स की भी स्टेटमेंट्स आए थे। मैंने खुद भी बहुत सारे उस पर डिसएग्री कमेंट्स किए थे और भी लोगों ने, मेरे जो भी प्रोफेसर जानने वाले हैं उन्होंने वो करा था। आपको क्या लगता है, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? सर पहले तो टू बी ऑनेस्ट मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उनको डायरेक्ट चैलेंज करूँ कि नहीं यू आर रॉन्ग। बिल्कुल, उनके भी कुछ रीजंस होंगे दैट दे आर मेकिंग दीज नो नो, आई क्लेम्स। एम आस्किंग टू यू व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन सच Right. क्लेम्स? सर मेरा तो सिंपल रिएक्शन है, मेरे लिए आई डोंट बिलीव कि एमबीए इज डेड राइट नाउ, क्योंकि अगर मेरा ऐसा विश्वास होता था सर मैं 3 साल नहीं देता इस नहीं एग्जाम देता, को। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि सर अगर आप एमबीए में जा रहे हैं विदाउट अ डिफाइंड क्लियर पर्पस, तब आई गेस वो आपके लिए नहीं, आप ढंग से उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि व्हाई आई वांट टू परस्यू एन एमबीए, कि मेरा उसके बाद का एंड गोल क्या है। अगर आप फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन एमबीए डिग्री आप एमबीए करने जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ना रहे मे बी। बट अगर आपका क्लियर डिफाइंड पर्पस है कि हाँ मेरे को एमबीए इसलिए करना है कि मुझे ये सर्टेन स्किल सेट डेवलप करने हैं, क्या मेरे को ये क्वालिटीज़ हैं जो अपने अंडर एज अ लीडर चाहिए, या मैं फ्यूचर में ये रोल्स में जाना चाहता हूँ, तो आपका सर एक क्लियर पर्पस है। तो अगर आप उस पर्पस को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए कोई भी एग्जाम या कोई भी फील्ड डेड है। हाँ ऐसा ज़रूर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब एम्प्लॉयर्स जो हैं वो स्किल सेट वाले लोग को ढूंढ रहे हैं, या जो अडेप्टिव लोग हैं, या जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं। तो अगेन आप सिर्फ डिग्री लेके नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना पड़ेगा अपना, तब आपके लिए कुछ भी कोई भी फील्ड तो होलिस्टिक डेवलपमेंट देखने के लिए तो बहुत सारे यही स्किल बेस्ड कोर्स है 3-3 महीने के, या आईएम्स के अंदर भी 15 डेज के हैं, वो करके नौकरी कर सकता है। सर वो फिर प्रैक्टिकल स्किल सेट आप कहाँ डेवलप कर पाएंगे? जैसे अगर आप आईएम में कोर्स ले रहे हैं, किसी भी कॉलेज में आप एमबीए करते हैं, तो सर 2 साल का उनका जो प्रोग्राम डिजाइंड होता है वो इसी तरीके से होता है कि वो आपके हर एक चीज़ को कवर करे। आपका नॉट जस्ट वो आपको प्रोफेशनली रेडी नहीं कर रहे हैं, आपको पर्सनली भी एक लेवल पे रेडी कर रहे हैं, जो कि आपको एनी टाइम फ्यूचर में हेल्प करेगा। ये अभी के टाइम पे, हाँ पहले में भी होता था कि एक एमबीए करना आपकी सक्सेस गारंटी कर देता था, अब के टाइम पे मे बी वो ना हो, बट हाँ अगर आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं कि आपको कैसे टैकल करना है, या जो अपॉर्चुनिटीज आप उसको कैसे फुल और उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। नेटवर्क मिलती है आईएम्स में? बिल्कुल सर, मेरे को सर अभी नहीं गया हूँ तो भी वो काफी नेटवर्क मिल चुका है। कनेक्शंस मिलते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट्स मिलती हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत हेल्प करता है ये एक्चुअली। मैं अपना रिसेंटली बताऊं तो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे काफ़ी कनेक्शंस बढ़े हैं उससे। जस्ट अभी मेरा बैच स्टार्ट भी नहीं हुआ, अब मेरे को एक्चुअली जो वहाँ पे बैच में जाऊंगा, जो मेरे 300-350 जो बैच के साथ के लोग होंगे, मैं उनसे नहीं मिला हूँ तो भी सर मेरे इतने ज़्यादा कनेक्शंस हो चुके हैं। और सर जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है कि म्यूचुअल कनेक्शंस बढ़ते हैं, नेटवर्किंग बढ़ती है, तो वो आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करता है। तो नेटवर्किंग तो सर बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी उसमें फील्ड के लिए। और वो जो छोटी एआई बेस या स्किल बेस कोर्स है, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं 3 महीने या 6 महीने के, उसमें आपकी नेटवर्किंग नहीं बढ़ पाती है, अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती है। इस वजह से वो एक शॉर्ट टर्म तो बहुत अच्छी है आपके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपका अच्छा नहीं है। इसलिए एमबीए इंटरव्यू में पूछे जाते हैं व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। हाँ राइट, वो मेरे से पूछा गया था एक्चुअली। अच्छा ओके, तो जो उसको जस्टिफाई कर पाता है उसके, मुझे लगता है कि उसे कॉलेज मिल जाता है गुड टू गो, और जो नहीं कर पाता है उसे रिजेक्शन मिल जाती है। सर एग्जैक्टली यही होता है। अच्छा, आईएम बोधगया एक टियर 2 कॉलेज है,
Yes, sir. जैसा लोग बताते हैं। Right. टीयर, तो ये डिफरेंस क्या होता है टीयर, आपको क्या लगता है टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 में क्या डिफरेंसेस हैं? कोई डिफरेंसेस भी हैं? सर अगर हम क्योंकि नंबर्स ऐसा नहीं है, ऐसा भी देखा गया है कि 97 परसेंटाइल वाला कैंडिडेट भी आईएम बोधगया में पढ़ता है, राइट और 99 वाला कैंडिडेट भी सॉरी और 93 वाला कैंडिडेट भी आईएम अहमदाबाद में पढ़ता है। राइट सर। तो जब इक्वलिटी सेम है तो डिफरेंस क्यों है कॉलेज के रैंकिंग में, या ये आमतौर में बोलचाल की भाषा में कि टीयर 1 टीयर 2? आपने क्या इसमें रिसर्च करा हुआ है? मैंने हाँ जी सर बिल्कुल क्या करा था रिसर्च किया और क्या आपने फाइंड किया? सर प्राइमरी रीजन यही है कि जो अगर हम एबीसी की बात करें या हम उसमें लखनऊ, कोझिकोड और इन सबको भी ऐड करें, तो सर ये ओल्डर जनरेशन आए हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो वो एस्टैब्लिश्ड है मार्केट में काफी ईयर से, तो उनका एक रेपुटेशन भी बिल्ड हो गया है, एंड उनके पास कंपनीज का इसलिए रीच आउट भी ज्यादा है, सिंस उनके उनके जो एलुमनाई सेक्टर है वो भी काफी वास्ट हो चुका है ओवर द ईयर्स। बिल्कुल। उसके बाद सर टीयर 2 कॉलेजेस भी हैं जो कि अब बेटर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीयर 2 एज इन सॉरी सेकंड जनरेशन आईएम्स, सच एज नागपुर, रांची, रायपुर, त्रिची, दे आर आल्सो डूइंग एक्सेप्शनली वेल दीस डेज। बोधगया, जम्मू, सिरमौर, अमृतसर या विशाखापट्टनम, इनका बस एक ये फैक्टर है कि ये थर्ड जनरेशन आईएम्स है। तो सर कोई भी कॉलेज जब स्टार्ट होता है वो इनिशियली एकदम स्काई रॉकेट पे नहीं चाहता, वो इवेंचुअली ग्रो करता है। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी से अगर मैं 10 साल डाउन द लाइन देखूं तो इनकी भी वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी, इनकी जो रेपुटेशन है बिल्कुल होगी। मेरे रिसेंटली सर मेरे को एक आदमी मिले थे एंड ही टोल्ड मी कि 9 इयर्स अगो उन्होंने कैट की जर्नी ली थी एंड उनको इंदौर मिला था अभी से 9 साल पहले, एंड वो नहीं गए थे इंदौर में। उनको आज रिग्रेट होता है कि वो क्यों नहीं गए, बिकॉज अब इंदौर बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हो गया है उस बेसिस पे। आप ब्लैकीज में उनको काउंट करते हैं, ब्लैकीज में काउंट करते हैं। इवन मैंने तो ये देखा है कि जिसको अहमदाबाद की कॉल नहीं आती उसे, सॉरी अहमदाबाद की कॉल आती है उसे इंदौर की कॉल नहीं आती। हाँ एग्जैक्टली। तो सर वो कोई भी कॉलेज हो सर, मे बी 10 साल पहले उनकी वो रेपुटेशन ना रही हो, बट ओवर द ईयर एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बिल्डअप हो जाती है बिल्कुल। एंड सर बहुत कम टाइम लगता है किसी भी टॉप 20 स्कूल को, सच एज IIM हो या कोई भी बेसिक कॉलेज हो, उनको टीयर 1 की लिस्ट में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे आपने रिसेंटली देखा कि उदयपुर भी नया कॉलेज है, बिल्कुल, बट उदयपुर इतना अच्छा कर रहा है इस टाइम पे कि काफी लोग, मैंने भी एक लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ा था दैट समवन लेफ्ट शिलोंग फॉर उदयपुर। हाँ, वो चॉइसेस लोग बना रहे हैं, इवन दो उदयपुर काफी नया है कंपैरेटिवली, बट स्टिल क्योंकि वो अच्छा कर रहा है। तो वही है सर, आप दूसरे IIM से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ओवर द ईयर्स वो रेपुटेशन बिल्डअप करें एंड वो अच्छा कर लेंगे। तो एक वो मेन IIMs में जाने का यही, जो मेरी प्रोस्पेक्टिव है, IIMs में जाने का यही मोटिव होता है कि उसमें अगर आप एलुमनाई मीट में जाते हैं 2029 में भी, तो फिर भी बीच के जो 4 साल के लोग हैं वो भी आपके नेटवर्क में आते हैं, राइट, और उनसे आपकी जो नेटवर्क बढ़ती है या आपकी जो कनेक्शंस बढ़ती है, तो वो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और हेल्प करती है। राइट सर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोग IIMs की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मूव करने की कोशिश करते हैं। राइट सर, ठीक है। कनित, आगे बढ़ते हैं। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग कैट और जेट एग्जाम इन अपकमिंग ईयर्स और फॉर 2026 और 27? राइट सर, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट के लिए, वो है कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका पैटर्न, उसका सिलेबस थरली समझें। क्योंकि अगर हम 4 जो कॉमन इंडिया में एग्जाम्स देते हैं लोग फॉर MBA, दैट इज़ कैट, जैट, NMAT एंड स्नैप, एंड चारों का ही पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस है। एक एडेप्टिव एग्जाम है, एक घंटे का एग्जाम है, एक 2 घंटे का एग्जाम है, बट वो वास्ट है, एंड जैट अगेन वो 3 घंटे का एग्जाम हो जाता है और उसमें एक एडिशनल सेक्शन है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, जो कि 80% ऑफ द पीपल दे डू दिस ओनली, दैट दे सोलिली फोकस ऑन कैट एग्जाम, एंड देन वो जब एग्जाम अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते हैं देन बहुत शॉर्ट टर्म में उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। वो ना करके आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा सबको टाइम देना चाहिए। तो आपको बेसिकली पैटर्न एंड सिलेबस समझना जरूरी है। लेकिन सबके सेक्शंस तो सेम ही होते हैं ना, क्वांट, DILR और VRC ओवरऑल सेम है सर, बट अगेन आपको उस पैटर्न में एडजस्ट करने के लिए भी जरूरत है। क्योंकि आप हो सकता है कैट में 20 क्वेश्चन करके आप बहुत अच्छी परसेंटाइल ला रहे हैं, बट आप अगर सेम अप्रोच के साथ स्नैप में गए तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे 20 क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे 60 क्वेश्चन ही होते हैं टोटल। आप 20 करेंगे तो आपकी परसेंटाइल नहीं बन पाएगी, और वन एग्जाम फॉर वन कॉलेज ओनली। हाँ, वो इशू है सर। तो आपको अगेन अगर आप सबको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि फीस भी आप हर एग्जाम के लिए अच्छी खासी दे रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट भी करेंगे आप अच्छा परफॉर्म करें। देन सेकेंड चीज़ होती है, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि कैट जैसे एग्जाम को 3-3.5 लाख लोग अपीयर होते हैं इस एग्जाम में हर साल। हाँ, तो मैं भी कॉमन मिस्टेक करते थे, वो एक आध लोग के हम पोस्ट देखते हैं, उनके मॉक स्कोर्स देखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं या डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि हमारा स्कोर नहीं आ रहा है या दूसरों का आ रहा है।
बट अगेन आप सिर्फ एक आध लोग से अपने आप को कंपेयर करके आप बुरा नहीं फील कर सकते। आपको बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम है, 3.5 लाख लोग हैं, उसमें काफी अच्छे परफॉर्मर्स भी होंगे, काफी मिड भी होंगे। तो आपको बस अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए कि आप कैसे इंप्रूव करके बेस्ट अपना निकाल सकते हैं। फेल्योर को जो डील करना है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट से डील Yes, करना sir. है, ना कि दूसरे से कंपेयर करके, राइट। क्योंकि आपको अगेन कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे ही फोकस करना चाहिए। ये सब चीज आप नहीं कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं, दूसरों की खराब नहीं कर सकते जाके। तो आपको अपने पे ही फोकस करना चाहिए जाके। एंड थर्ड इज कि आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, मतलब एक फिक्स स्ट्रैटेजी ना रख के, हाँ आप स्ट्रैटेजी जरूर रखिए मॉक देते टाइम। मॉक के स्कोर अप डाउन होते हैं, खराब भी लगता है कभी कभी स्कोर देख के बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आपका खराब स्कोर आ रहा है, तो आपको बुरा भी लगता है कि नहीं, कि कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। बट वो ना सोच के, क्योंकि एक वो फीडबैक है मॉक, आपको मेन प्रिपेयर करना है अपने लास्ट डी डे के लिए। तो मॉक से फीडबैक लो, उससे लर्निंग लो एंड आगे इंप्रूवमेंट रखो। एंड सिर्फ मॉक्स को एनालाइज सिर्फ देना नहीं है सर, एनालाइजेशन मतलब जब आप एनालाइज करते हैं मॉक्स को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि 2 घंटे का मॉक तो स्टार्टिंग मॉक्स देनी चाहिए या फिर प्रिपरेशन के बाद मॉक से स्टार्ट करनी चाहिए? सब मेरे हिसाब से आपको एक मॉक देना चाहिए स्टार्टिंग में, ये देखने के लिए कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है आपके लिए। ठीक है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि बीइंग अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी, उनके लिए सर मैथ्स और एलआरडीआई टैकल करना कंपैरेटिवली काफी इजी होता है। बिल्कुल। तो वो पहले मॉक भी देंगे तो सर उनकी परसेंटाइल हमारे इसलिए इंजीनियर्स के लिए आसान होता है परसेंटाइल क्रैक करना। हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उनके लिए एलआरडीआई और क्वांट्स का सेक्शन जो है वो हाई स्कोरिंग हो जाता है, कंटिन्यू पढ़ते हैं, राइट। उनके लिए वीआरसी थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करता है। हाँ। जो कि नॉन इंजीनियर्स को थोड़ा एज मिल जाता है जहाँ पे। बट अगेन वो 2 सेक्शंस में आपसे बेटर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आप कंपैरिजन नहीं रख सकते। वही आपको अगेन सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले ही काम करना पड़ेगा फोकस करके। ओके। एंड दूसरे से कंपैरिजन मत करो, अपना एनालिसिस करो एंड हमेशा सेल्फ वर्थ अंडरस्टैंड करके हमेशा आगे मूव, मतलब यू मस्ट मूव फॉरवर्ड अपना वर्थ अंडरस्टैंड करते हुए। ठीक है। कोई ऐसा बुक आप बताना चाहोगे जो सबसे ज्यादा हेल्प करती हो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा बुक्स नहीं यूज करे थे। हाँ मेरे पास कुछ ऐसा कोई खास बुक नहीं है? नहीं मेरे पास टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं यूज किया। बट हाँ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के काफी बुक्स होते हैं जो कि यूज करते हैं, तो मैंने वो बस यूज किया था प्रीवियस ईयर। और एक कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है अपने प्रिपरेशन में? सर बहुत रिजिड हो जाना अपनी स्ट्रैटेजी को लेके। तो अगर कोई स्टूडेंट एमबीए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सर अपने फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स को क्लियर रखना, उसके ऊपर आप बिल्डअप करें एंड उससे आप अपना बेस्ट यूज करें अपने आगे बिल्ड के लिए। एंड हाउ इम्पोर्टेंट आर कंसिस्टेंसी, mentorship and self belief during MBA preparation? Sir, I believe they are absolutely critical because consistency is what makes you keep going. Okay. अगर आप consistent है तो आपके small efforts भी over the time compound हो जाते हैं, तो वो बहुत आगे आपको help करते हैं consistency में। मोटिवेशन का क्या है सर, मोटिवेशन आज है तो आपने कर लिया, कल थोड़ी कम है नहीं करेंगे। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं अपने अप्रोच के साथ, तो आपको है कि हाँ मेरे को डेली करना ही करना है, तो कंसिस्टेंसी से आपकी वो प्रैक्टिस बनी रहती है कंटिन्यूस। सेकंड, अगर हम मेंटरशिप की बात करें तो सर अगेन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक राइट गाइडेंस मिलती है। जो मेंटर्स होते हैं उनको आइडिया है कि बच्चे कहाँ पे ट्रैप्स में फंसते हैं, कौन सी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए। ऑलरेडी वो सारे फेजेस कंप्लीट करके आ चुके होते हैं, एक्सपीरियंस करके आ चुके होते हैं, खुद भी किया सर, उसके बाद काफी ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है अपने करते हुए, तो उनको पता है कहाँ पे बच्चे ट्रैप्स में फंसते हैं, कहाँ मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। तो अगेन वो गाइडेंस बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको बेस्ट वे दिखाने के लिए। एंड थर्ड सर वही है कि अगर आप सेल्फ बिलीफ की आपने बात करी, वो सर उसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि आपको सर थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी सेटबैक्स मिल सकते हैं, काफ़ी फेलियर्स मिल सकते हैं, बट आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दैट देन आई हैव इट इन मी टू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड गेट एन एडमिशन इनटू टॉप बी स्कूल। वो सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को आगे बढ़ाते रहने के लिए कंटिन्यूसली। ओके, तो हमारी ये इस कन्वर्सेशन की ओवरऑल अगर हम बात करें, फाइंड आउट कि हमने क्या फाइंड किया, तो पहले हमें प्रोफाइल पे काम करनी है एज वेल एज उसके साथ वर्क एक्स के साथ साथ। इसके बाद हमें एक ऐसा कॉलेज देखना है, वो आईएम्स हो या टॉप बी स्कूल हो, जिसमें हमारी कनेक्शंस और नेटवर्क बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बने। राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में ही आपकी प्रिपरेशन खत्म हो गई। एंट्रेंस एग्जाम में पहली प्रिपरेशन करी, दूसरी प्रिपरेशन फिर इंटरव्यू के लिए करी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट है एडमिशंस के लिए। तीसरी प्रिपरेशन फिर आप कॉलेज में जाके एक तो कॉलेज की अपनी स्टडी भी करो और उसके साथ नेटवर्क बिल्डिंग की भी प्रिपरेशन करो और एक अच्छी नेटवर्क बिल्डिंग करो। तो एमबीए पूरा का पूरा एक करियर ट्रांसफॉर्म करने की कोर्स है,
एक पूरी 2 ईयर की प्लानिंग है, ना कि ये डेड है जो लोगों ने सर। कहा। जो मेरी आपकी भले परसेप्शन ना हो, लेकिन मेरी परसेप्शन यही है कि ये मैं कंप्लीटली डिसएग्री हूँ इससे कि एमबीए आज के टाइम में भी डेड नहीं है। एमबीए एवरग्रीन कोर्स है और वो आगे चलता रहेगा। राइट सर। Thank you, Ganesh. Thank you for such a kind word for upcoming students. Thank you so much sir for having me. Thank you.